हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। मैं एमएससी सेमेस्टर थर्ड, केमिस्ट्री पेपर 12th, यूनिट सेकंड, फोटोकेमिस्ट्री, लेक्चर 9, फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी हम कर रहे हैं। और इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हम करेंगे। रिएक्शन है पैटर्न ऑफ बुकी रिएक्शन. This primary process can occur if a ketone or aldehyde is photocatalyzed in the presence of alkene. Addition of N to pi star transition state T1, triplet state of ketone to alkene, that is anti-Markovnikov addition, gives a biradical spin inversion and secondary cyclization lead to an oxygen. Now this is our ketone. On irradiation it goes to singlet state, which on ISC intersystem conversion we get triplet N2 pi star, and this triplet can be indicated as this. Both the electrons are in parallel spin. Now energy transfer occurs. This is benzophenone, and energy acetophenone. Energy transfer occurs to this compound, and we get addition happens, and this we get this compound CO. this एक बार वापस समझें इसको. ये एसिटोफिनोन है, इसको इरेडिएट करेंगे तो सिंगलेट स्टेट में जाएगा, और सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम कन्वर्जन द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा. ट्रिपलेट स्टेट का एडिशन होगा इस एल्कीन के साथ, तो हमें ये एक कंपाउंड मिलेगा जिसमें यहाँ ये दो रेडिकल्स होंगे. ये जो है स्पिन इन्वर्जन होगा, और यहाँ जो है ये साइक्लाइजेशन होकर के इस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा. लेट अस डिस्कस दीज रिएक्शंस इन डिटेल. अल्फा क्लीवेज रिएक्शन, अल्फा क्लीवेज ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड. दिस रिएक्शन to given by all these all those compounds which have carbonyl group, carbonyl compounds, acid, alpha cleavage of acyclic compound. This reaction is given by all those compounds which have carbonyl group, carbonyl compound, acid, chloride, etc. Alpha cleavage is carried out in gas phase. In solution, the alpha cleavage processes are of much less importance for acyclic ketones, especially if there are other processes such as Norris type 2 reaction. The importance of alpha cleavage in solution phase photochemistry increases with increasing temperature as population of upper vibrational levels becomes significant. Ketones, for example acetone, gives rise to an alkyl and acyl free radical by alpha cleavage. ये एसीटोन है, मॉलिक्यूल है, इसका रेडिएशन करेंगे तो हमें मेथिल रेडिकल प्लस एसिटाइल रेडिकल मिलेगा. Acyl chloride gives acyl free radical and chloride free radical, chlorine free radical. This is acyl chloride. On irradiation it will convert to acyl free radical and chlorine free radical. When the two alpha bonds are not identical, it is the weaker bond which breaks preferentially. हमारे कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ समान समूह नहीं हो तो हमारा जो मोर स्टेबल
जो रेडिकल है वो बनता है। ये देखिए रेडिएशन किया तो एल्काइल रेडिकल, जो एथिल एल्काइल रेडिकल है वो बनेगा और एसाइल रेडिकल बनेगा, न कि मेथिल रेडिकल। और दिस इज प्रोपेक्सल, ये 3 कार्बन वाला कीटोनिक रेडिकल, तो ये मोर स्टेबल है इसलिए ये बनेगा। नाउ द रेशियो ऑफ एथाइल टू मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी स्टेप इज अबाउट 40:1 when 313 nm radiation is used. This is in agreement with the generalization. The secondary reaction produced in alpha cleavage follows the pattern accepted for free radical processes. Fragmentation, that is loss of carbon monoxide from acyl free radical, combination of 2 alkyl free radicals, and disproportionation of 2 radicals and radical substitution. For example, abstraction of a hydrogen atom from the solvent are all observed. And now this ketone कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है। जब हम गैस फेज में इसका इरेडिएशन करेंगे तो सिंगलेट स्टेट मिलेगी, और जो कि इंटर सिस्टम कन्वर्जन द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में चली जाएगी। नाउ ये जो ट्रिपलेट स्टेट है ये ब्रेक होकर के हमें एक तो 2 टर्शी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टेबल फ्री रेडिकल्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। नाउ ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं टर्शी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, इनका क्या भविष्य है ये देखिए। ये दोनों आपस में वापस रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन यहाँ से इस दूसरे फ्री रेडिकल पर पहुँच जाए, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएशन के लिए ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो एक डबल बॉन्ड क्रिएशन हो गया और ये हमारा ब्यूटेन बन गया। तो दिस इज ब्यूटेन एंड दिस इज ब्यूटीन। तो इस तरह से हाइड्रोजन शिफ्टिंग होकर के डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। नाउ दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाए वापस तो हमें आइसोऑक्टेन मिलेगा, एक 6 ऑक्टेन कंपाउंड मिलेगा। तो यदि ये हम कीटोन लेते हैं जिसमें एक तरफ टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ मेथिल ग्रुप है, और इसका सॉल्यूशन में हम रेडिएशन करें तो स्टेबल टर्शी ब्यूटाइल मिलेगा हमें रेडिकल, प्लस एसाइल रेडिकल मिलेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन भी किसके फेवर में जाएगा? ब्यूटीन के फेवर में जाएगा, क्योंकि यहाँ एल्किन बनने की कोई संभावना नहीं है। और ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा हमारा एसाइल रेडिकल पे, तो हमें एसीटल्डिहाइड मिलेगा। और इसी तरह से यदि यही एल्किन लें, कीटोनिक कंपाउंड लें और इसका सॉल्यूशन में हम रेडिएशन करें तो डायरेक्टली हमें ब्यूटिल रेडिकल, मेथिल रेडिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। अब ये जो 2 रेडिकल मिले हैं इनका जो है ब्यूटाइल रेडिकल का वापस डिस्प्रोपोर्शनेशन हाइड्रोजन शिफ्टिंग होकर के ब्यूटीन और ब्यूटेन मिलेगा, और मेथिल फ्री रेडिकल भी मेथेन में चेंज हो जाएगा। ये एक कीटोनिक कंपाउंड लें जिसमें बेंजो ग्रुप हो, दोनों तरफ बेंजिल ग्रुप हो, तो क्या होता है देखें। हम इरेडिएशन करें 313 एनएम पर सॉल्यूशन में तो हमें बेंजाइल रेडिकल मिल रहा है, और बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है वापस और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो रही है, और ये दोनों वापस कंबाइन होकर के ये कंपाउंड मिल रहा है डाई इथेन का डेरिवेटिव, और ये 100% यील्ड है, यानी एक ही प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है। एरोमेटिक कीटोन्स सच एज बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन डू नॉट गिव अल्फा क्लीवेज। जो हमारे एरोमेटिक कीटोन्स है बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन, इसमें अल्फा क्लीवेज नहीं होता है। अल्फा क्लीवेज ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे अब हम। साइक्लिक कीटोन्स, लैक्टोन्स एंड एनहाइड्राइड्स अंडरगो अल्फा क्लीवेज to give biradical species on photolysis in gas or solution phase.
The biradical after decarbonylation step may recombine, extract a hydrogen or undergo secondary fission reactions to yield hydrocarbon and olefins. देखिए एक बार वापस देखें हम इसको, अल्फा क्लीवेज की बात करेंगे हम साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जो हमारे साइक्लिक कीटोन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और एनहाइड्राइड्स हैं, वो अल्फा क्लीवेज होगा उनका। तो बाई रेडिकल्स स्पीसीज हमें मिलेंगे गैस और सॉल्यूशन फेज में। ये जो बाई रेडिकल है इनका डीकार्बोनिलेशन होगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो हमें डाई रेडिकल्स मिलेंगे। और ये डाई रेडिकल्स का जो फेट है, भविष्य है, वो फिशन रिएक्शन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन कार्बन्स बन सकते हैं और एल्किन्स यानी ओलिफिन्स बन सकती हैं। देखिए ये हमारा एक जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लिक कीटोन को। इसका इरेडिएशन करवाएं तो हमें ये डाई रेडिकल मिला, जिसमें ये एसाइल टाइप रेडिकल है और ये एल्किल फ्री रेडिकल टाइप रेडिकल है। दोनों एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं एंड टू एंड। नाउ इसका डीकार्बोनिलेशन करें हम, इस कंपाउंड का डीकार्बोनिलेशन करें तो हमें ये डाई फ्री रेडिकल मिल रहा है। ये डाई फ्री रेडिकल जो है रिकम्बाइन होकर के सीधा साइक्लिक एल्केन में चेंज हो सकता है। दोनों जो एंड है वो आपस में जुड़ जाएं तो एक साइक्लिक एल्केन बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ से एक्सट्रैक्शन हुआ हाइड्रोजन का, यहाँ चला जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएशन हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ गया चूंकि यहाँ से, तो ये यहाँ एल्केन बन गया और यहाँ एल्किन बन गया। ये एल्किन और ये एल्केन। सेकेंडरी फिशन भी हो सकता है इसमें, और जो है छोटे रेडिकल्स बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ हम बात करें, ये CH2 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 इस चेन को हमने लंबा बढ़ा दिया और यहाँ 3 कार्बन कम कर दिए, तो यहाँ एक एल्किल इथाइल फ्री रेडिकल जो है वो अलग हो गया और उसका हमें इथिन मिल गया और यहाँ भी डबल बॉन्ड क्रिएशन हो गया और एक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो गया। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम एग्जांपल्स की बात करेंगे।